So today we are going to start with a new chapter named Lost Springs Stories of Stolen Childhood, written by Anais Jung. She was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anais Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled The Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation. So, ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, वो लिखी है एनीस जंग ने. वो पैदा हुई थी रौरकिला में और उसने अपना जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड है वो स्पेंड किया है हैदराबाद में. और एजुकेशन जो उसने ली वो हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली. दोनों पेरेंट्स उसके राइटर्स थे, तो उसने भी अपनी राइटिंग का एज अ राइटर अपना करियर स्टार्ट किया इन इंडिया. सो शी वॉज अ ग्रेट एडिटर थी वो, कॉलमनिस्ट थी फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. और उसने बहुत सारी किताबें लिखी. उनमें से एक किताब है द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन childhood. So in this the author tells us the story of her interaction with children from deprived backgrounds. She described their poor condition and life in an interesting manner. The story touches the reader as it and is thought provoking. So ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी लिखी है एनीस जंग ने, वो किसके बारे में है? वो उनके और उन बच्चों के इंटरेक्शन के बारे में है जो बच्चे डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब बहुत पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है. और ये जो इंटरेक्शन है वही चीज़ इस स्टोरी में बताई गई है. तो ये स्टोरी इतनी इमोशनल है कि कोई भी जब इसको पढ़ेगा तो एक सोचने में मजबूर हो जाएगा कि क्या ऐसी भी लाइव्स होती हैं. Okay, so let's start reading the chapter. Okay, so I'll read a paragraph and I'll then explain you the whole paragraph. Okay, so the first story is Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. Okay, so let's read the first paragraph. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning. Scrounging means searching for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago. She admissed means in the middle of the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. So this paragraph means the story is starting early in the morning. So every morning the writer sees a young rag picker boy, जो झोला उठाकर जो कचरा इकट्ठा नहीं करते हैं उनको रैग पिकर बोलते हैं. ओके, सो हर मॉर्निंग, हर सुबह जो राइटर थी वो एक रैग पिकर बॉय को देखती थी, हु विजिट्स द गार्बेज डंप नियर हर हाउस एंड सर्चेस फॉर गोल्ड इन इट. तो वो जो गार्बेज डंप होता है जहाँ पे सारा गार्बेज फेंका जाता है, तो वहाँ पर एक रैग पिकर बॉय को देखती थी राइटर, जो उसके घर के पास था. और वो क्या सर्च करता था? फॉर गोल्ड इन इट. ओके, सो द राइटर सेज दैट ही सर्चेस फॉर गोल्ड ironically because although the garbage dump is full of useless thrown away things,
Still, he shuffles it so minutely as if he will get something as precious as gold from it. So, जो राइटर है वो यहाँ पर एक आयरनी है, यहाँ पर एक आयरनी दिखाना चाहती है दैट ही इज़ सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज. जैसे कि हमें पता है कि गार्बेज जितना भी होता है, सब कुछ होता है, वो फुल ऑफ यूजलेस चीज़ें होता है. उसमें जो वो चीज़ें होती हैं जो सब ख़राब हो चुकी होती हैं. फिर भी वो जो रैग पिकर बॉय था उन सबको शफल करता था और कुछ ऐसा ढूंढता था कि उसको इतना प्रीशियस मिल जाए जितना प्रीशियस गोल्ड है उसके लिए. ठीक है. सो द बॉयज़ नेम इज़ साहिब. His home in Dhaka was in the middle of lush green fields. They had left it many years ago, and he does not remember it anymore. His mother had told him that there were many storms which destroyed their homes and fields. So they left home and shifted to the city in search of gold. The writer again says, looking for gold in big cities. Gold refers to something precious which was not available in their hometown. So जो लड़का था जिसका नाम साहिब था, जो रैग पिकर बॉय था उसका नाम क्या था? साहिब था. तो जो साहिब था वो रहता कहाँ था? ढाका में, जहाँ पे उसका घर बिल्कुल फील्ड, ग्रीन फील्ड के बीच में हुआ करता था. पर वो राइटर को बताता है कि उसको इतना याद नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा था उस टाइम पे. और दूसरी चीज़ ये कि जो उसकी मदर ने उसको बताया कि बहुत सारी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफ़ान, आंधी वहाँ पर आए जिसकी वजह से उनका घर और फील्ड सब बर्बाद हो गया. सो वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बड़े शहर में आ गए इन सर्च ऑफ गोल्ड. फिर राइटर ने अगेन यहाँ पे क्या बोला है? लुकिंग इन फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी. तो गोल्ड यहाँ पे क्या है? कोई भी ऐसी प्रीशियस, कोई भी ऐसी बहुत ही कीमती चीज़ जो उनके घरों में अवेलेबल नहीं थी, ढाका में अवेलेबल नहीं थी. ओके. थिंग्स लाइक शूज़, मनी, बैग्स एक्सेट्रा for the children and food, clothing children as means of survival for their parents. The boy searches for such precious things in the garbage dumps. One day the writer questions Sahib and asks him the reason for shuffling through the garbage. So उसके लिए गोल्ड क्या था? उसके लिए गोल्ड था कुछ पैसे, एक बैग, शूज़ या फिर खाना, कपड़े, शेल्टर जो उनकी सर्वाइवल के लिए, जो उनकी रहने के लिए हेल्प कर सकें. तो यही उनके लिए गोल्ड था. ओके. उनसे ये सब इतनी प्रीशियस थी उनके लिए कि वो उसको क्या कह रहे हैं? दे आर रेफरिंग इट एज गोल्ड है. एंड जो बॉय है यहाँ पे वो कहाँ पे सर्च कर रहा है? ये गोल्ड गार्बेज डंप में सर्च कर रहा है. सो एक दिन जो राइटर है उन्होंने साहिब जो लड़का है उससे क्वेश्चन किया कि ये रीज़न क्या है जो तुम बार बार इसको शफल कर देते हो सारा गार्बेज. ओके. सो टू दैट he replied, let's read. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. Okay, so mutters means to speak in a very low voice. I have nothing else to do, he mutters. He mutters means he speaks in very low voice. बहुत धीमी आवाज़ में उसने बात करी. Looking away. Go to school, I say glibly. Glibly means speaking or spoken in a confident way but without careful thought or honesty. बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में जब आप कोई चीज़ बोलते हो पर आप उसको बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं हो कि वो किसी को हर्ट कर जाएगी या फिर कोई केयरफुल थॉट के बगैर उसको आप बोल देते हो बस, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिबली. Realizing immediately how hollow the advice must be. Hollow means very meaningless. इसका कोई मतलब नहीं है. So, what happened? When there is no school in my neighborhood, when they built one in, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. So what happened?
Sahib replies to the writer that he has nothing else to do other than rag picking. तो जब राइटर ने उसे पूछा कि तुम ये शफल क्यों करते हो ये सारा गार्बेज, तो उसने जवाब दिया कि उसके पास और कोई काम नहीं है rather than picking the waste material, the garbage. Okay, so the writer suggested that he should go to school. तो राइटर ने क्या सजेस्ट किया उसे कि उसे स्कूल जाना चाहिए और वहाँ पढ़ना चाहिए. Then she realizes that her advice is meaningless for the poor boy. और फिर थोड़ी देर बाद उसको ये रियलाइजेशन होता है कि ये जो एडवाइस जो उसने दी है वो मीनिंगलेस है, वो किसी काम के नहीं है उस पुअर बॉय के. He replies, उसने उसका क्या रिप्लाई दिया, that there are no school in the area where he lives. कोई भी स्कूल नहीं है वहाँ पे जहाँ नेबरहुड में जहाँ पे वो रहता है. He also assures her that he will go to school when one is built near his house. So उसने उसको प्रॉमिस किया, एश्योर किया उसको कि जब कोई ऐसा स्कूल मेरे घर के आसपास बनेगा तो मैं जाने लगूँगा स्कूल. तो फिर राइटर आस्क हिम जोकिंगली, मजाक में राइटर ने पूछा कि अगर मैं कोई स्कूल यहाँ पर खोलूँगी तो क्या तुम उसको अटेंड करने आओगे. सो टू दैट what he replies, let's read. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. So, it takes longer to build a school, I say embarrassed. Embarrassed means feeling ashamed, शर्मा जाना, शर्म आना. ठीक है. At having made a promise that was not meant, but promises like mine abound. Abound means exist in large number. In every corner of his bleak world. Bleak means empty world. Okay, so this paragraph means that Sahib says that he would join the writer's school, and after a few days he runs up to her to ask whether her school is ready. तो जब राइटर ने उससे पूछा कि क्या अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे, तो उसने बहुत ही अच्छे से रिप्लाई किया, स्माइल करते हुए रिप्लाई किया कि हाँ मैं आऊँगा. और कुछ ही दिनों बाद वो राइटर के पास आया साहिब और उसने पूछा कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया. So to that, writer replied that it takes a lot of time to build a school. तो उस पर राइटर ने रिप्लाई किया कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक स्कूल को बनाने में. She felt ashamed at making a false promise. और उसको बहुत बुरा लगा, बहुत शर्म आई कि उसने एक झूठा प्रॉमिस एक लड़के से किया. She had said this as a joke and had never intended to open a school. और उसने मजाक में कही थी ये बात कि अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो तुम आओगे. और उसने कभी भी ये चीज़ इंटेंड नहीं करी थी, कभी भी ये कोई इसका इंटेंशन नहीं था कि वो सच में स्कूल खोलेगी कोई, है ना. सो शी फेल्ट ashamed of herself. Sahib was not hurt because he was used to such false promises as they existed in large numbers of his empty world. बट साहिब जो था वो हर्ट नहीं था इस बात की, क्योंकि उसको आदत थी, उसको हैबिट थी इस चीज़ के कि और वो इसीलिए हर्ट नहीं हुआ. ये सारे फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे प्रोमिसेस इन लार्ज नंबर में हुए थे उससे पहले भी. बहुत लोगों ने उसकी मदद करने के लिए शायद बोला और नहीं करी हो, तो ये सारे फॉल्स प्रोमिसेस उसके साथ पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका था. दैट इज़ व्हाई ही वॉज नॉट हर्ट. He was surrounded by such false promises made by everyone around him. His world was empty as no promise made to Sahib was ever fulfilled. उसका world empty था, बिल्कुल खाली था. क्यों? क्योंकि ऐसे ही लाखों प्रॉमिस उसके साथ किए गए थे साहिब से, पर एक भी फुलफिल नहीं किया था किसी ने भी. ओके, सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Hard time
believing it means it would be difficult for him to believe that his name meant the Lord of Universe. उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ये चीज़ बिलीव करना कि उसका नाम जो है वो तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स का शहंशाह उसके नाम का मतलब है, और वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ कैसी है, उसको तो कचरा उठाना पड़ रहा है, और उसका नाम क्या है, साहिब आलम. ओके, इफ so let's read further. Unaware of what his name represents, he roamed the streets with his friends, an army of barefoot boys. Barefoot मतलब नंगे पैर, with wearing nothing in the feet, who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the time, I have come to recognize each of them. So, what does this paragraph means? This paragraph means that the writer had known Sahib for a few months, and when she asked him his name, he replied as if he was making an announcement that his name was Sahib Alam. So, जब कुछ महीने से वो जानने लगी थी साहिब को, राइटर, तो उसने उससे नाम पूछा उसका. तो साहिब ने अपना नाम जो था ऐसे बताया जैसे कि कोई अनाउंसमेंट हो रही है. उसने अपना नाम क्या बताया, साहिब आलम. तो राइटर ने ऐसा सोचा, शी थॉट दैट द बॉय डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, एंड इफ ही केम टू नो दैट हिज नेम मेंट लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड नॉट बी एबल टू बिलीव इट. सो राइटर ने सोचा मनी मन कि जो लड़का है इसका जो नेम का मीनिंग है, अच्छा हुआ इसको नहीं पता है कि इसके नेम का मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, क्योंकि अगर इसको पता चल जाएगा तो ये बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लाइफ तो ऐसी है और नाम उसका साहिब आलम है. सो ही वेंट अराउंड द स्ट्रीट्स एंड हिज नेम वाज ऑपोजिट ऑफ हिज लाइफ. ओके, ही वेंट अराउंड द स्ट्रीट्स विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. तो उसके एक फ्रेंड्स थे कुछ सारे, तो वो स्ट्रीट्स में घूमता रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर. इट वॉज लाइक एन आर्मी ऑफ बॉयज़, और ऐसा लगता था कि छोटी सी आर्मी है बॉयज़ की. हु डिड नॉट वेयर एनी फुटवेयर, जो कुछ भी पैर में नहीं पहनते थे, नंगे पैर रहते थे. दे अपीयर्ड इन द मॉर्निंग लाइक अ मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर्ड एट नून. जैसे बर्ड्स होती हैं सुबह सुबह चर्प करती हैं, सुबह सुबह दिखाई देती हैं, और नून में जब धूप आ जाती है वो गायब हो जाती है. तो वैसे ही ये बॉयज़ थे. मॉर्निंग में तो इनकी आर्मी दिखती थी लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, बट जैसे ही नून होता था, जैसे ही दोपहर होती थी, ये लोग कहीं डिसअपियर हो जाते थे. द राइटर कुड रिकग्नाइज ऑल ऑफ देम एज शी हैड बीन सीइंग देम फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स. सो उनको सबको पहचानने लगी थी. लेट्स रीड फर्दर. व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? I asked one. My mother did not bring them down for the shelf. He answers simply. So चप्पल्स क्या होते हैं, जो पैर में हम चप्पल पहनते हैं उसको चप्पल्स कह रही है यहाँ पे. So this line means the writer asked one of them that why he was not wearing any footwear. The boy simply replied that his mother did not get them down from the shelf as they are beyond his reach. He did not wear them. So what he said कि उसकी जो मॉम है, उसकी जो मदर है साहिब की, वो उसे शेल्फ से निकालने नहीं देती अपनी चप्पल, क्योंकि उनके बियॉन्ड ऑफ रीच है. बियॉन्ड ऑफ रीच इन हिंदी से औकात के बाहर है, ऐसा, ठीक है. तो इसलिए वो नहीं पहनता चप्पल, नंगे पैर वो बेयरफुट ही घूमता रहता है इधर उधर. ओके, सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. इवन इफ शी डिड he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match when I comment on it. He shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but the tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perceptual state of poverty. So, shuffles means
स्लाइड्स देम ओवर ईच अदर। मतलब कि शफल मतलब क्या होता है, सब कुछ इसे मिला देना, एक दूसरे को बस मिला देना, ठीक है। और एक्सक्यूज़ मतलब क्या होता है, रीज़न टू जस्टिफाई अ फॉल्ट, कोई ऐसा रीज़न देना कि वो आपकी जो गलती है उसको जस्टिफाई कर रही हो, दैट इज़ एन एक्सक्यूज़। एंड द लास्ट लाइन, टू एक्सप्लेन अवे अ परसेप्चुअल स्टेट ऑफ poverty. Perceptual state of poverty means never ending condition of being poor. ये perceptual state ही तो है, वो लोग समझ रहे हैं कि ये कोई नेवर एंडिंग ही सिचुएशन है उनके लिए। कभी भी वो लोग ऐसे तो नहीं है कि आज गरीब है और कल अमीर हो जाएंगे, नो, वो हमेशा गरीब रहेंगे। तो ये नेवर एंडिंग सिचुएशन है उनके लिए। ओके, सो दिस पैराग्राफ मीन्स दैट अनदर बॉय हु वाज वेयरिंग अ डिफरेंट shoes in each foot said that even if his mother would have given him his footwear, he would have thrown it away. So जब राइटर ने साहिब से पूछा था कि तुम हमेशा बेयरफुट क्यों रहते हो, तो उसने उनसे कहा कि जो शेल्फ़ है उसके ऊपर मेरी मदर ने रख दिया और वो हमारे आउट ऑफ रीच है, इसलिए वो पहनने नहीं देती हैं। ओके, सो जो उसके साथ एक और लड़का था उसने कहा और वो लड़का क्या था, वो लड़का कैसा था, वो लड़का अलग अलग शूज़ पहना था अपने फुट में। ओके, सो उसने कहा कि अगर इन केस साहिब की मदर उसे फुटवेयर दे भी देती तो वो उसको फेंक देता उठा के और नहीं पहनता। ही meant that the boy was not wearing footwear because he did not want to wear one. उसका मतलब था कि जो लड़का है साहिब है वो क्यों नहीं पहन रहा फुटवेयर, क्योंकि वो पहनना ही नहीं चाहता। राइटर asked the second boy the reason for wearing a different shoes in each foot. So the writer asked, दूसरे जो लड़का था उसके साथ उससे पूछा कि तुम क्या रीज़न है कि तुम अलग अलग शूज़ पहने हुए हो। So what he replied, he did not reply and shuffled his shoes and he tried to hide the shoes. So उसने रिप्लाई नहीं किया राइटर को और उसको ऐसे बिहेव करने लगा, अपने पैर छुपाने लगा। He tried to hide the shoes in each foot. Okay, so a third boy spoke that he was so eager to get a pair of shoes as he had never owned one all his life. So जो थर्ड बॉय था उसने बोला, ईगर मतलब बहुत ही एक्साइटेड है, ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू गेट अ पेयर ऑफ शूज़, क्योंकि उसके पास कभी भी पूरी लाइफ में उसके अपने शूज़ थे ही नहीं उसके पास। Okay, the writer take the example of shoes to highlight the condition of these boys. So ये incident राइटर ने यहाँ पर क्यों बताया है स्टोरी में, ये शूज़ को लेकर ये राइटर जो इंसिडेंट ये एग्जाम्पल जो शूज़ का लेके बता रही है, ये बताना चाहती है कि कितनी पुअर कंडीशन थी, कितनी ख़राब कंडीशन थी उन लड़कों की। They searched the garbage dump looking for such precious things. She further talks us that she travelled across the world. She had seen many children walking barefoot in the cities as well in the villages. They reasoned that they were barefoot not due to lack of money but to buy footwear, but being barefoot was a tradition for them. The writer wondered and concluded that the reason of it being a tradition was mere excuse to hide the fact that they were so poor that they could not afford footwear. So जो राइटर है उसने इन बच्चों को, ये जो सारे बॉयज़ हैं उनको बताया कि वो बहुत जगह घूमी है और उसने बहुत लोगों को सिटीज़ में विलेजेस में देखा है कि वो लोग बिना कुछ फुटवेयर पहने घूम रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं। तो और उन्होंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये जो नंगे पैर घूमने का मतलब ये नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है लेने के लिए, बट ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारे रिचुअल्स हैं। बट देयर ओनली शी कंक्लूडेड एंड वंडर्ड, उस राइटर ने सोचा और ये कंक्लूड कर दिया कि इनका जो रीज़न है ये उनके पास पैसे नहीं है, सिर्फ ये छुपाने के लिए कितने पुअर हैं, इसलिए उन्होंने उसको ये ट्रेडिशन बोल दिया, उन सब ये ट्रेडिशन के नाम पे सब कुछ छुपा दिया है। ओके, so that is what she is trying to say here. Okay, so let's read the next paragraph.
I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. Desolation means the state of being empty. In the backyard lived the new priest. There were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting. Panting means taking short and quick breath. छोटी छोटी सांस भरना. And threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, and I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now who wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. So राइटर ने इस पैराग्राफ में एक स्टोरी नरेट करी है बाय a story told to her by a man from Udupi. Udupi is a town in Karnataka. एक टाउन का नाम कर्नाटक है. सो इन स्टोरी क्या है, लेट्स सी. There was when he was a young boy, he would walk to his school. तो ये राइटर नरेट कर रही है बॉयज़ को. ओके, तो एक लड़का था, यंग बॉय, जो वो स्कूल जाता था. ऑन द वे ही क्रॉस्ड अ टेम्पल वेयर हिज फादर वर्कड एज अ प्रीस्ट. प्रीस्ट मतलब पंडित होता है. तो जब स्कूल जाते समय उसके रास्ते में एक टेम्पल पड़ता था जहाँ पर उसके फादर जो थे वो एक पंडित थे. He would stop at the temple and pray to God to bless him with a pair of shoes. तो वो वहाँ रुकता था टेम्पल में और प्रे करता था कि उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए बस. After 30 years, the writer visited the town and the temple. So after 30 years वापस से राइटर ने वो टाउन और वो टेम्पल गई. The plastic chairs in red and white color were kept there. Okay, and now the place was nearly empty. वो बिल्कुल empty हो गई थी place. And the new priest lived in the backyard of the temple. और जो पंडित था वो भी change हो गया था. A young boy came running. He was wearing grey colored uniform, socks and shoes. He had a school bag hung on his shoulder. उसके पास एक school bag था shoulder में. He threw it on the bed and ran away. The writer wants to say that the financial position of this priest at the temple had improved over the last 30 years. So यहाँ पे writer क्या बताना चाह रही है कि 30 years के span में जो एक पंडित की जो financial condition थी, आर्थिक स्थिति थी, वो सही हो गई. पहले 30 years पहले उसका बच्चा प्रे करता था कि उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, और अब बिल्कुल स्कूल यूनिफॉर्म में सब कुछ बिल्कुल नाइसली ड्रेस्ड. अब वो बच्चा बदल गया है, अब वो दूसरे प्रीस्ट का बच्चा है. सो द फाइनेंशियल कंडीशन, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द प्रीस्ट एट द टेम्पल हैज़ बीन इम्प्रूव्ड. नाउ ही कुड अफोर्ड शूज़ फॉर हिज चिल्ड्रन. He was reminded of another goddess had granted his pair as the boy never lost his footwear. This shows us the unprivileged value anything that they get because they have been longing for it. So ये क्या बताती है हमें? अनप्रिविलेज्ड वैल्यूज़ बताती है हमें कि हम उस चीज़ को ट्रेडिशन बना देते हैं. जो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ हम नहीं ले पाते, जो चीज़ हम नहीं खरीद पाते, दैट इज़ अ ट्रेडिशन फॉर देम. कि हम बेयर फुट ही घूमेंगे क्योंकि बेयर फुट एक ट्रेडिशन हो जाता है. ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर. आई विल एक्सप्लेन यू द फर्दर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.